Student, we are discussing here the chapter number 4 of the class 8, and the name of this chapter is materials, metal and non-metal. In the previous class we have discussed the physical property of the metal and the non-metal, but in today's class we will be discuss the chemical properties of the metal and the non-metals. How we will be classify them, the metal and non-metals, according to their chemical properties. So chemical properties means we will be discuss here how they can be separate out and how we can be identified according to their chemical reactions. Okay, so before go through the chemical properties, we have to be just know the some example of the metal and non-metals. Okay, so सबसे पहले हम कुछ examples देखेंगे of the metal and non-metals, and then we will be discuss like the metals. We have to remember some example I'm writing here, like the iron, like the copper, like the aluminium, like the gold. I hope you all know the so many example. Okay, copper, aluminium, gold, silver, sodium, potassium. Okay, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम and so many. Sodium, potassium, magnesium, tin, zinc. Okay, zinc, tin. These are the some certain example of the metals. Now students, we will be talk about the non-metal also. हम इसके भी example लिखते हैं. Non-metals example like the carbon. I will be write the short form. Carbon, sulfur, nitrogen, silicon, boron, germanium. Okay, there are so many like the hydrogen, helium. These are the some certain gases like the bromine and etc. There are so many non-metals is also present. Now we will be discuss here the chemical properties of the metal and the non-metal, कि ये किस तरह से reactions करते हैं. तो जब हम chemical properties की बात करेंगे तो हम one by one discuss करते हैं. Firstly we will be discuss here how the metal and non-metal react with the oxygens. So firstly I will be write here react with the oxygens. I can be use the black color here. React with ऑक्सीजन, कि ये ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे. सपोज यू हैव ए मेटल हियर, दिस इज द मेटल and it will be react with the oxygens. I will be write here the O2 here, O2 for the oxygens. So they will be form the metal oxide. Metal oxide. You can also write the so many example. metal oxide के अंदर कैसे कैसे रहेंगे. सपोज करो यहाँ पर मैंने metal की जगह आयरन्स लिया है, it will be react with the oxygens, it will be form the iron oxide. अगर मैं यहाँ metal की जगह copper लूँ तो it will be from the copper oxide. If I will be take the aluminum here, it will be from the aluminum oxide. Gold होगा तो gold oxide. Okay, so ये हमारे oxide बनाएंगे. Similarly, if I take here the non metals NM, non metals अगर मैं यहाँ पर लूँ और उसकी मैं reactions कराता हूँ oxygens की present में, and it will be react with the oxygens, then what will be happens, the non-metal will also form the non-metal oxide. तो होगा क्या, कुछ नहीं होगा, ऑक्सीजन जुड़ जाता है यहाँ पर. So they will be from the non-metal oxide. Non-metal oxide. Suppose if I take the carbon here and carbon will be react with the oxygens, so it will be react with the carbon oxide. अगर नाइट्रोजन लिया है यहाँ पर नॉन मेटल्स में, तो नाइट्रोजन will be react with the oxygens, it will be from the nitrogen oxide. Okay, I hope it's clear कि किस तरह से हमारा reactions work करेगी. So metal when will be react with the oxygens, they will be from the metal oxide. And remember the one thing, the metal oxide will be always in the basic nature. एसिड और बेस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द 7th क्लासेस. 7th क्लास में हमने एसिड और बेस डिस्कस किया था. यू हैव टू रिमेंबर मेटल ऑक्साइड विल बी बेसिक इन नेचर्स. द मीनिंग ऑफ इट, दे विल बी कन्वर्ट द रेड लिटमस इनटू द ब्लू. ये रेड लिटमस को ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देंगे. दे हैव ए बेसिक नेचर.
When we talk about the non-metal oxide like the carbon dioxide, sulfur dioxide, nitrogen oxide, oxide और डाइऑक्साइड, अगर दो ऑक्सीजन जुड़ेंगे तो डाइऑक्साइड, एक ऑक्सीजन जुड़ा है तो वन ऑक्साइड, ठीक है, यानी कि ऑक्साइड. सो नॉन मेटल ऑक्साइड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, बोरॉन ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड, हीलियम ऑक्साइड, बोरॉन ब्रोमीन ऑक्साइड. सो ऑल दीज ऑक्साइड विल बी एसिडिक इन नेचर. ये सारे के सारे एसिडिक नेचर के होंगे, मीनिंग दे विल बी कन्वर्ट द ब्लू लिटमस इनटू द रेड वन. ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करेंगे, ये रेड के अंदर कन्वर्ट करेंगे. आई होप इट्स क्लियर. नाउ स्टूडेंट वी विल बी सी हियर द सम डिफरेंट थिंग्स. अभी हमने क्या डिस्कस किया, रिएक्ट विद द ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कैसी रिएक्शंस होगी, मेटल्स विल बी फॉर्म द मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल विल बी फॉर्म द नॉन मेटल ऑक्साइड, एंड डेफिनेटली yes they are the acidic and the basic natures. Okay, अब आपको याद रखना है what exactly happen in the oxidations or the oxygens. कोई भी कंपाउंड है ऑक्सीजन के साथ कब रिएक्शंस करेगा, जब हम उसको बर्न करते हैं. you have to remember during the burning या combustions we can be also say. so during the combustion, during the burning, the metal non metal will be react with the oxygens. सपोज करो मैं एग्जांपल लेता हूं आपके लिए, एक पेपर मैंने लिया, कागज लिया मैंने, और दिस पेपर विल बी गो थ्रू द कंबशंस. मैंने क्या कर दिया, इसको जला दिया, कंबशंस होगा, ठीक है. सो दिस पेपर इज मेड बाय द कार्बन. पेपर किसका बना हुआ है, कार्बन का बना हुआ है. सो डेफिनेटली व्हेन दिस पेपर विल बी बर्न, सो इट विल बी रिएक्ट विद द ऑक्सीजन्स, क्योंकि कंबशंस क्या होता है, ऑक्सीजन्स के साथ रिएक्शंस होती है. तो जो पेपर जब बर्न होगा तो उसमें से क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस. बिकॉज पेपर इज मेड बाय द कार्बन, इट विल बी रिएक्ट विद द ऑक्सीजन्स एंड इट विल बी प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा. अगर सपोज करो मेटल से आपके पास, मेटल्स में मैंने लिया आयरन्स ले लिया, ओके, और आयरन्स को मैंने डम्प कंडीशंस में रख दिया. डम्प कंडीशंस मींस इन द मॉइस्चर्स एंड द वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन both are the present. Water vapor and oxygens both are the present, so it will be react with the oxygens and it will be form the iron oxide. That is also the kind of the combustions. जब आयरन ऑक्साइड बनता है, यानी कि आयरन पे जब जंक लगती है ब्राउन कलर की, तो वो क्या होती है, वो भी हमारी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस होती है, जो ब्राउन कलर की जंक लग जाती है आयरन के ऊपर. ओके, दैट इज द आयरन ऑक्साइड्स. सो दिस इज द मेटल ऑक्साइड, इट इज ऑल्सो द कंबशंस. वहां पर जलाना नहीं होता, लेकिन यहाँ पर भी ऑक्सीजन हमारी रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर रही है. यहाँ पर फ्लेम नहीं होती है, इसलिए हम इसको स्लो कंबशंस भी बोलते हैं, इन द रस्टिंग ऑफ आयरन. ठीक है, आयरन जब हमारा ऑक्सीजन से रिएक्शंस करता है, सो इट इज ऑल्सो नोन एज द स्लो कंबशंस. सो दिस आयरन ऑक्साइड विल बी द बेसिक इन द नेचर्स, क्योंकि हमारा मेटल ऑक्साइड से, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड था ये हमारा एसिडिक इन द नेचर्स था, बिकॉज इट इज द नॉन मेटल ऑक्साइड. आई होप इट्स क्लियर. सो द रिएक्शंस विद द ऑक्सीजन्स, यानी कि अगर हम किसी मेटल को जलाएंगे, बर्न करेंगे, या नॉन मेटल को जलाएंगे या बर्न करेंगे या कंबशंस करेंगे, सो इट विल बी रिएक्ट विद द ऑक्सीजन्स एंड इट विल बी फॉर्म इनटू द ऑक्साइड. मेटल मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, नॉन मेटल ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होगा. आई होप इट्स क्लियर. नाउ स्टूडेंट्स वी विल बी टॉक अबाउट द सेकंड प्रॉपर्टीज, सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज यू विल बी सी हियर. बुक्स में गिवन है मैग्नीशियम रिबन का. मैग्नीशियम रिबन विल बी बर्न इन द ऑक्सीजन्स, सो इट विल ऑल्सो कन्वर्ट इनटू द मैग्नीशियम ऑक्साइड. ओके, नाउ वी कम टू द सेकंड वन. सेकंड वन प्रॉपर्टीज है हमारे पास द reactions with the water. Yet we had discussed only the oxygens. अब हम डिस्कस करेंगे reactions with the water. The second properties I will be right here. Reactions with water. अभी हमने डिस्कस किया with the oxygens. Now we will be discuss here water के साथ कैसे रिएक्शंस करेंगे. सपोज करो आपके पास मेटल्स है, मेटल्स यही सारा ग्रुप है. वी आर डिस्कसिंग द आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम. ठीक है, ये सारे के सारे मेटल्स हैं. व्हेन दे विल बी रिएक्ट विद द वाटर H2O के साथ, सो यू ऑल हैव टू रिमेंबर दैट व्हेन दे विल बी रिएक्ट विद द वाटर, सो दे विल बी फॉर्म इनटू द मेटल हाइड्रोक्साइड. आई विल बी राइट हियर मेटल हाइड्रोक्साइड. Similar
नॉन मेटल विल ऑल्सो रिएक्ट विद द वाटर, नॉन मेटल भी हमारे वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और ये हमारे क्या बनाएंगे, नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड। नॉन मेटल, ये सिंपल मैं लिख दे रहा हूं NM हाइड्रोक्साइड। आई होप it's clear to you. Okay, so metal hydroxide, non-metal hydroxide. So when we talk about the metal hydroxide, non-metal hydroxide, तो इनका भी सेम ही कंडीशंस होता है। मेटल्स हमारे ज़्यादातर हाइड्रोक्साइड फॉर्म होंगे एंड दे विल बी बेसिक इन द नेचर्स, ये भी हमारे बेस होते हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की, सो नॉन मेटल्स विल बी फॉर्म इनटू द हाइड्रोक्साइड बट देयर हाइड्रोक्साइड इज द लेस स्टेबल्स, बहुत कम स्टेबल्स होता है, इसीलिए वो हमारे क्या होते हैं, नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड ब्रेक हो जाते हैं एंड दे विल बी कन्वर्ट इनटू द नॉन मेटल ऑक्साइड। ओके, एंड दैट विल बी द एसिडिक इन नेचर्स। तो नॉन मेटल्स हाइड्रोक्साइड विल बी अनस्टेबल्स, दैट विल बी कन्वर्ट इनटू द ऑक्साइड एंड दैट विल बी नॉन एज द एसिडिक। इनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है। तो याद रखना, मेटल बेस, नॉन मेटल एसिड। आई होप इट्स क्लियर। वी हैड डिस्कस हियर द टू टाइप ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज। रिएक्शंस विद द वाटर, अगर सपोज करो मेटल्स का मैंने एग्जांपल लिया, आयरन विल बी रिएक्ट विद द वाटर, आयरन हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम विल बी रिएक्ट विद द वाटर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, कोई भी मेटल रिएक्शंस करेगा वाटर के साथ, it will be form the hydroxide. Similar non-metals, it will also form the hydroxide. But after that, it will be converted into the oxide. I hope it's clear. यहाँ पर हमने डिस्कस किया है एसिड और बेस के साथ। ओके, अब सॉरी एसिड बेस नहीं, ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे थर्ड प्रॉपर्टीज। मैं इसको इरेज करता हूँ। वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर द थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल्स। थर्ड प्रॉपर्टीज, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। Okay, now the third properties you will be see react with the acid, react with acid। अब हम रिएक्शंस करेंगे एसिड के साथ। फर्स्ट प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किया ऑक्सीजन के साथ, सेकंड प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया वाटर के साथ, H2 इज द फॉर्मूला ऑफ द वाटर। थर्ड प्रॉपर्टीज में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, एसिड के साथ। एंड नाउ यू हैव टू टेल मी व्हेन वी विल बी द रिएक्ट विद द एसिड, हमारे पास मेटल्स भी है, नॉन मेटल्स भी है, नॉन मेटल्स भी है, एनएम मैंने लिख दिया यहाँ पर। सो दे विल बी रिएक्ट विद द एसिड, मेटल भी रिएक्ट करेगा एसिड से और नॉन मेटल भी रिएक्ट करेगा एसिड से। तो आपको ये बताना है कौन सी रिएक्शंस होगी, कौन सा मेटल, मेटल और नॉन मेटल कौन सा एसिड के साथ रिएक्शंस करेगा। अभी हमने डिस्कस किया था जो मेटल्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड आर द बेसिक, बट जो नॉन मेटल्स होते हैं इनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो बेस हमारा एसिड के साथ रिएक्शंस करेगा, यानी कि ये रिएक्शंस प्रोसीड होगी, बट नॉन मेटल्स हमारा यानी कि एसिडिक है, वो एसिड के साथ रिएक्शंस नहीं करेगा। सो मीनिंग याद रखना, ये हमारा एसिड एसिड के साथ रिएक्शंस नहीं करता, इसलिए नॉन मेटल्स विल नॉट रिएक्ट विद एसिड, बट मेटल्स विल बी रिएक्ट विद द एसिड। और मेटल्स जब एसिड के साथ रिएक्शंस करेंगे सो इट विल बी फॉर्म द सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। क्या निकलेगा यहाँ से, हाइड्रोजन गैस निकलती है और एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। अब हम इसी के एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो मेटल्स मैंने लिया यहाँ पर आयरन, एंड आयरन इज रिएक्ट विद द HCl. HCl is the hydrochloric acid. This is the acid and this is the metal. When they will be react, metal definitely it is a basic natures. तो एसिड बेस की रिएक्शंस होती है, हमने 7th क्लास में डिस्कस किया था। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आयरन क्लोराइड, और साथ में क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो याद रखना, whenever metal will be react with an acid, hydrogen gas will be evolve, निकलेगी, इवॉल्व माने, एंड द सॉल्ट विल बी फॉर्म, आयरन क्लोराइड इज द सॉल्ट हियर। सिमिलर अगर मैंने नॉन मेटल्स लिया लाइक द कार्बन ले लिया या सल्फर ले लिया, व्हेन दे विल बी रिएक्ट विद द HCl सो इट विल नॉट बी प्रोसीड, ये HCl के साथ रिएक्शंस नहीं करेंगे because they are the non-metal and non-metal has a acidic characters. I hope it's clear. Now students we will be come to the next ones, reactions with the bases. अब हम क्या बात करेंगे, reactions with bases। मैं इसको इरेज करता हूँ, चलो यहीं पे आ जाएगा, जगह है। थर्ड प्रॉपर्टीज वी हैव कंप्लीट, नाउ वी कम टू द फोर्थ प्रॉपर्टीज।
फोर्थ प्रॉपर्टीज, इसको ऊपर करो, रिएक्ट्स विद बेस, ठीक है, रिएक्शंस विद द बेस है ये, this is the fourth chemical properties. You can write here, we react with the base here. Now suppose we have the both acid as well as the base. मैं इसको अलग अलग कलर से लिखता हूँ, एसिड को मैंने मेटल से हमारे पास, और मेटल्स को मैंने रेड कलर से लिख दिया, और नॉन मेटल्स भी हमारे पास, नॉन मेटल्स को मैंने ग्रीन कलर से लिख दिया। और अब हम दोनों की रिएक्शंस करेंगे, वी विल बी रिएक्ट विद द मेटल्स एंड द नॉन मेटल विद द बेस, we are going to add the base in the non-metals and the metals, and now just think about it, which reactions will be proceed and which not. क्या दोनों reactions proceed होंगी, दोनों में कुछ compounds बनेगा या नहीं बनेगा? Now just see here, metals का जो natures है, definitely metals are basic in natures, ये हमने discuss किया था, और non-metals are the acidic in nature. तो नॉन मेटल्स हमारे एसिडिक हैं और ये हमारा बेस में हम ऐड कर रहे हैं, तो यानी कि ये वाली रिएक्शंस तो होगी, लेकिन जो हमारा मेटल्स है वो हमारा बेस है और उसको हम बेस में डिसॉल्व करें, तो इसके अंदर ये वाली रिएक्शंस नहीं होगी। आई होप इट्स क्लियर, बहुत सिंपल है ये। मेटल विल नॉट बी रिएक्ट विद द बेस बट नॉन मेटल विल बी रिएक्ट विद द बेस। द रीजन इज नॉन मेटल्स आर द एसिडिक इन नेचर्स। नॉन मेटल्स और बेस का अगर हम एक एग्जाम्पल लें, सपोज करो नॉन मेटल्स का कोई भी ग्रुप ले लो, यहाँ पर कार्बन्स ले लिया हमने, सल्फर ले सकते हैं, सिलिकॉन ले सकते हैं, हाइड्रोजन ले सकते हैं, ओके, देयर आर सो मेनी ग्रुप ऑफ द नॉन मेटल, वेल दे विल बी रिएक्ट विद द बेस लाइक द सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, so they will also form the salt, ओके। यहाँ पर क्या होगा, सपोज करो मैंने यहाँ पर बना दिया तो सोडियम का साल्ट बनेगा, मैं सिंपल लिख दे रहा हूँ सॉल्ट, एंड हाइड्रोजन गैस विल ऑल्सो इवॉल्व फ्रॉम देयर। तो हाइड्रोजन गैस हमेशा निकलेगी अगर हमारा मेटल एसिड के साथ रिएक्शंस कर रहा है और नॉन मेटल बेस के साथ रिएक्शंस कर रहा है। सॉल्ट विल बी फॉर्म एंड हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व ड्यूरिंग दिस रिएक्शंस, ओके। यू कैन डू दिस रिएक्शंस बाय योरसेल्फ, बहुत सारी रिएक्शंस है, खुद कर सकते हो, अलग अलग मेटल्स लेकर के, अलग अलग बेस लेकर के ये रिएक्शंस नहीं होगी, अलग अलग नॉन मेटल्स अलग अलग बेस लेकर के ये रिएक्शंस हमारी प्रोसीड होगी, ओके। आई होप इट्स क्लियर। Now students, we will be talk about the reactivity series of the metals. This is the very important reactivity series. reactivity series की बात करते हैं तो ये हमारा बेस यही होता है जिनके अकॉर्डिंग हम सीरीज की बात करेंगे। What are the meaning of it? reactivity series, the metals का बहुत बड़ा ग्रुप हमने पढ़ा था। कौन कौन सा ग्रुप पढ़ा था? मेटल्स के अंदर हमारा आयरन्स भी आएगा, एल्युमिनियम आएगा, है ना, सिल्वर हो गया, सिल्वर के लिए मैं इसको AG लिख देता हूँ, कोई नहीं, गोल्ड हो गया, ठीक है, प्लेटिनम हो गया, और बहुत सारे मेटल्स थे हमारे पास, कॉपर हो गया एंड मरकरी हो गया। सो देयर आर सो मैनी मेटल्स, मरकरी को मैं मरकरी लिख देता हूँ। सो देयर आर सो मैनी मेटल्स वी हैव। नाउ इफ वी विल बी टॉक अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज, सो रिएक्टिविटी सीरीज का मीन होता है इट इज ए काइंड ऑफ द सीरीज meaning line which help us to tell which metal is the more reactive than other metals, or we can say we are just going to be comparison of their reactivity. Suppose करो if I will ask you, they are the two metals, iron है और magnesium है, दोनों में से कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम मेटल्स रिएक्टिव है, तो वो हमें कैसे पता लगेगा? अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज। तो इसके लिए हम सबसे पहले बेस लेते हैं कुछ, और उसी के अकॉर्डिंगली वी विल बी क्लासीफाई देम इन द रिएक्टिविटी सीरीज। सम मेटल्स कैन बी रिएक्ट वेरी विगरसली, सम एग्जांपल लाइक द सोडियम एंड द पोटेशियम्स। यू हैव टू रिमेंबर सोडियम एंड पोटेशियम्स, ये जो हमारे मेटल्स हैं ये बहुत जल्दी रिएक्शंस करते हैं। अगर कोल्ड वाटर हमने लिया है और कोल्ड वाटर के अंदर हम इनको पुट कर देते हैं तो ये क्या होती है, आग लग जाती है इनके अंदर, फायर बर्निंग हो जाती है, बिकॉज दे आर द हाईली रिएक्टिव मेटल्स, सोडियम एंड पोटेशियम्स। देन वी सी लाइक द कैल्शियम, मैग्नीशियम, and I can be right here like the aluminium. So they are the slow reactive metals. Calciums, magnesiums and aluminium. They can be react with the water. वाटर में ऐड करेंगे, वाटर के साथ रिएक्शंस कर लेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस कर लेंगे, ठीक है। बट कोल्ड वाटर के साथ ये बहुत स्लो रिएक्शंस करते हैं। सो वी कैन से दे आर द स्लो रिएक्टर्स, ओके, दे आर द मॉडरेट रिएक्टर्स। सो इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है,
इनकी रिएक्टिविटी मॉडरेट है, यानी कि कम है थोड़ी सी, बट कुछ मेटल्स जैसे हमारे पास गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, दीज आर द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। ए सबसे कम रिएक्टिव होते हैं, इनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है, नेग्लिजिबल। ये जल्दी से वाटर से भी रिएक्शन नहीं करेंगे, ऑक्सीजन से भी रिएक्शन नहीं करेंगे, डाइल्यूट एसिड से भी रिएक्शन नहीं करते, वेस्ट से भी रिएक्शन नहीं करते। सो दीज आर द वेरी लीस्ट रिएक्टिव्स। सो दिस इज द सीरीज, ये मैंने क्या बना दिया, ये सीरीज बना दिया। सो दिस इज द सीरीज ऑफ द रिएक्टिविटी। मीनिंग क्या हुआ, मोस्ट हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर द सोडियम एंड पोटेशियम, then calcium, magnesium, aluminum, and the least reactive metals is the gold, silver, platinum. I hope it's clear. You will be see at your books there is the given gold is the least reactive, तो gold को मुझे सबसे नीचे लिखना चाहिए, ठीक है। गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव मेटल्स होता है, सबसे कम रिएक्शंस करता है, और सबसे ज्यादा हमारा सोडियम और पोटेशियम रिएक्शंस करेंगे। सो दिस इज द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। आई होप स्टूडेंट्स इट इज क्लियर। Now the last topic is given, the displacement reactions. When we talk about the displacement reactions, displacement reactions, displacement reactions, this is the very important, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। Okay, so I will be right here. Displacement reactions. Displacement reactions we will be talk about which metal is the more reactive, which metal is the less reactive. आपको देखना है कि कौन सा हमारा मेटल्स किसको डिस्प्लेस करेगा, यानी कि हटा करके खुद अटैच हो जाना। सपोज यू हैव ए बीकर हियर एंड यू जस्ट फिल हियर ए सॉल्यूशंस ऑफ ए मेटल, मेटल का सॉल्यूशंस है, एंड आई एम जस्ट टेकिंग हियर कैल्शियम सल्फेट CaSO4, इट इज फाउंड इन द लिक्विड सल्फेट, लिक्विड सॉल्यूशंस। ये लिक्विड के अंदर है हमारा कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। एंड नाउ यू विल बी ऐड हियर ए मेटल, आपने क्या कर दिया कि यहाँ पर मेटल ऐड कर दिया है, और ये मेटल से हमारा एल्युमिनियम का। सो यू हैव टू टेल मी दिस एल्युमिनियम विल बी रिएक्ट विद दिस लिक्विड और नॉट। हियर ए कैल्शियम इज प्रेजेंट, यानी कि हमारा जो कैल्शियम से वो इसके अंदर पहले से प्रेजेंट है, और जो सल्फेट ग्रुप है इसके साथ हमारा कैल्शियम अटैच है। एंड व्हेन वी विल बी एट द एल्युमिनियम, सो एल्युमिनियम कैन नॉट बी डिस्प्लेस द कैल्शियम्स। क्या होगा यहाँ पर, आई विल बी राइट द इक्वेशंस हियर, कैल्शियम सल्फेट, और जब हम इसको एल्युमिनियम ऐड करेंगे इसके अंदर, तो एल्युमिनियम क्या करेगा, एल्युमिनियम इज द लीस्ट रिएक्टिव। यू विल बी सी हियर एल्युमिनियम हमारा नीचे आ रहा है, कैल्शियम हमारा ऊपर है। इसका मीन क्या हुआ कि कैल्शियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, एल्युमिनियम की रिएक्टिविटी कम है। तो जो लिक्विड स्टेट के अंदर है वो हमारा कैल्शियम प्रीफर करेगा, यानी कि एल्युमिनियम अगर हम ऐड करेंगे सो कैल्शियम विल बी यस लेस इफेक्टिव, और वी कैन बी से इट विल नॉट बी द चेंज एनी स्टेट ऑफ द कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट को ये कोई भी चेंज नहीं करेगा, क्योंकि कैल्शियम क्या है हमारा मोर रिएक्टिव है। एंड सिमिलरली इफ यू यूज द कैल्शियम सल्फेट के अंदर ही लाइक द potassium metals, then what will be happen, if you will be see the potassium is the more reactive than the calcium. potassium हमारा ऊपर है, कैल्शियम हमारा नीचे है, तो पोटेशियम हमारा, पोटेशियम को मैंने के से लिखा है, ठीक है, याद रखना, पोटेशियम इज के से लिखा है, ये पी लिख दिया मैंने, ठीक है। सो पोटेशियम इज द मोर रिएक्टिव, जो हमारा मोर रिएक्टिव है ये क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा। सो पोटेशियम विल बी अटैच विद द सल्फेट एंड कैल्शियम विल बी लिबरेट एट द सॉलिड स्टेट। तो इस कंपाउंड में से कैल्शियम को हटा करके फॉस्फेट खुद जुड़ जाएगा और कैल्शियम को अलग कर देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पोटेशियम पावरफुल है, जो ज़्यादा पावरफुल होगा वही रिएक्शंस करेगा। तो यहाँ पर कैल्शियम पहले रिएक्शंस कर रखा था, अब यहाँ पर पोटेशियम आ गया, पोटेशियम ने कहा मैं पावरफुल हूँ, तो वो जाकर के सल्फेट के साथ अटैच हो जाएगा और कैल्शियम एक कोने में पड़ा रहेगा। एल्युमिनियम के केस में क्या था, कैल्शियम ज़्यादा पावरफुल था, कैल्शियम की ज़्यादा रिएक्टिविटी, और एल्युमिनियम वीकर था, तो एल्युमिनियम कुछ नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर ऐसी कैल्शियम सल्फेट पड़ा रहेगा। आई होप इट्स क्लियर। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस इज आकर, क्या होता है यहाँ पर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स जाएगा और वो वीकली रिएक्टिव एलिमेंट्स को हटा करके खुद ऐड हो जाएगा। सो दीज आर द सम सर्टेन एग्जांपल, ये मैंने एग्जांपल लिखे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के। ओके, देयर आर सो मेनी एग्जांपल इज गिवन लाइक द कॉपर सल्फेट एंड द फेरस। अगर मैं एक नया एग्जांपल लूँ, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ कंप्लीटली, इस रिएक्टिविटी को आप याद रखना। नाउ अनदर एग्जांपल ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सपोज यू हैव गिवन द फेरस सल्फेट,
I will be right here, not the ferrous, I will be right here the copper sulfate. Copper sulfate. कॉपर सल्फेट इज ए ब्लू कलर सॉल्यूशंस. ये ब्लू कलर का सॉल्यूशंस होता है, लैब के अंदर आपको मिलेगा. दिस इज द कॉपर सल्फेट. व्हेन यू विल बी ऐड इन इट द आयरन, आयरन को हम Fe से लिख देते हैं, यानी कि आपने इसके अंदर एक आयरन की रोड ऐड कर दी है. ठीक है, आयरन मेटल्स. सो व्हाट विल बी हैपन्स, द फेरस विल बी डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन. फेरस क्या हो जाएगा, इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, और ये क्या बनाएगा, फेरस सल्फेट. और कॉपर क्या हो जाएगा, कॉपर हमारा सॉलिड स्टेट के अंदर फॉर्म हो जाएगा. इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि हमारा आयरन इज ए मोर रिएक्टिव देन द कॉपर, so that's why it will be dissolved in the solutions and the copper will be, yes, liberated, precipitated in the solid forms. So copper weaker active था, weak reactive था, इसलिए वो solid form में अलग सेपरेट हो जाएगा. आयरन यहाँ पावरफुल था, तो आयरन यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिएक्टिव रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेगा. I hope it's clear students. We have complete all the reactivity series, all the chemical and the physical properties. Okay, so I hope it's clear to you. Do you have any questions, you can ask. Thank you all.